Hello students, so welcome back to the channel. It is called as Mathematics by Rumina, and in this video today I am going to cover your 5.1 question number 1 to question number 10. Basically I have firstly explained you all the questions which were based on the concept of graphical method. तो मैंने ऑलरेडी आपको ग्राफ सिखा दिया है. Now we are going to move with the approach that I just talked in the end of that class. It's a request, if you haven't seen that video, please go back and see that video because that is very important and essential for understanding all the types of concept. Okay, and always remember, for the graphing part and for JEE Mains and for SAT, you actually want to understand the graphing part which is there in that video. So please go and watch that video, then only you'll be able to understand the full concept nicely. Okay, so now let's move ahead and let's understand more about the topic that we're going to start. 5.1, question number 1 to question number 10. The concept that we have done, that was left hand limit is going to be equals to right hand limit, and that is going to be equals to f of a. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था limit x tends to a minus fx is equals to limit x tends to a plus fx is equals to your fa. Okay, this was a simple topic that I was talking about, the simple formula I was talking about. What if कि मैम हमें a minus और a plus कुछ ना दिया हो, तब क्या कर सकते हैं? If it's only talk about a constant value, if it is given that find the continuity at this value, so let x be equals to c, और फिर क्या करेंगे? So limit x tends to c fx should be equals to your f of c. That's it. अगर मेरे पास माइनस प्लस की कंडीशन नहीं है तो मैं डायरेक्टली ये भी सॉल्व कर सकती हूँ. ओके, now let's move ahead and let's understand first question of the exercise. Prove the following function fx equals to 5x minus 3 is continuous at 0 at x equals to minus 3 and x equals to 5. यहाँ पे जब एक डेफिनेट पॉइंट की बात हुई है तो ऑब्वियसली डेफिनेट पॉइंट के लिए आई विल ऑलवेज यूज दिस वाला अप्रोच. ओके, सो लेट्स सी हाउ. At x equals to 0, that means limit x tends to 0 fx would be equals to f0. So बस इसे कैलकुलेट करते हैं. अगर मैं पहले x tends to 0 पे मूव करती हूँ, that would be my, I can just say it right like this only. Limit x tends to 0 fx क्या होगा? 5x minus 3. यहाँ पे 0 पुट कर दूंगी तो क्या आएगा? दैट वुड बी माइनस 3. सिमिलरली f0 क्या होगा मेरे पास? जस्ट डायरेक्टली पुट 0 ओवर हेयर, इट वुड बी minus 3. So yes, since these both are equal, so I would say yes, my function is continuous at 0. Okay, therefore the given function, or you can write fx equals to 5x minus 3, or the function is continuous at x equals to 0. Similarly, let's move at x equals to minus 3. So now limit x tends to minus 3 fx, वो क्या बन जाएगा बेटा? That would be your limit x tends to minus 3, just put minus 3 over here. Okay ना? So वो बनेगा 5 into minus 3 minus 3. यहाँ just do the simple calculation, that is 5 into minus 3 is minus 15 minus 3, and that would be written as your minus 18. Okay, similarly for f of minus 3, बस minus 3 यहाँ पुट कर दो, सेम आंसर आ जाएगा, that is minus 18. So yes, therefore the function is continuous at x equals to minus 3 also. Similarly, we are going to find for x tends to 5 also. x equals to 5 में भी सेम वर्किंग है, बस स्टेप्स का कुछ फ़र्क पड़ता है, बाकी कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली द सेम. ओके, so 5 into 5, that is 25. 25 minus 3, that is your 22. Similarly, f of 5 would be 5 into 5, 25. 25 minus 3 is 22. Yes, therefore function is continuous at all the values, that is continuous, function is continuous at x equals to 0, minus 3 and 5. That's it. simple calculation थी, बस समझने वाली बात थी. Now let's move. सेम क्वेश्चन है बेटा, एट एक्स इक्वल टू 3 की बात कर दी मुझे अलग फंक्शन के साथ. एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल्स टू 3. सेम कॉन्सेप्ट है, दैट इज वी विल जस्ट ट्राई टू प्रूव लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी. एक्स इक्वल्स टू 3 बात की तो मेरा सी क्या है यहाँ पे? मेरा सी जो है दैट इज इक्वल्स टू योर 3. सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एफ एक्स क्या था? 2x स्क्वायर माइनस 1. सो जस्ट पुट द वैल्यू.
3 का स्क्वायर इज 9, so 2 into 9 minus 1, 9, 2 into 9 is 18, 18 minus 1 is 17. Similarly, f of 3, that would be 2 into 3 का square, so that would be 9, 9 into 2 is 18, 18 minus 1 is 17, and therefore yes, it is continuous. ये भी बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं. इतने सिंपल क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में नहीं आते. इट कैन कम फॉर 1 markers, नॉट मोर देन दैट. Now it is saying that examining the following function for continuity. Now it is not giving me any type of value. So how I can prove it continuous? That means ये मेरा क्या है, ये मेरा फुल रियल नंबर पे बात करता है. एंड फॉर दिस अगर आपको याद हो तो मैंने क्या समझाया था, इट इज़ अ लीनियर ग्राफ. लीनियर का ग्राफ कैसा होगा? सिंस I can just write the given function is linear, or the fx is a linear function, the fx is a linear function. So therefore I told you that for linear we are going to have a graph like this always. So x क्या है, इसमें डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है. तो ये कंटिन्यूस भी कहाँ होगा? इट इज़ कंटिन्यूस एट फुल रियल नंबर आर. अब आपको बेटा इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. दिस मच इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू स्कोर द फुल मार्क्स. इट्स सफिशिएंट टू स्कोर द फुल मार्क्स. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. एग्जामिंग द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी. 1/x-5 है यहाँ पे, x नॉट इक्वल्स टू 5 की बात आ गई है. अब देखो 5 पे इक्वल नहीं है, उसके अलावा ये कंटिन्यूस होना चाहिए. बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये मेरे पास f(5) की बात करते हैं तो f(5) बेटा क्या आएगा इसका आंसर? 1/5 - 1 दैट इज़ 1/0 दैट इज़ इन्फिनिटी. सो ऑब्वियसली इक्वल्स टू 5 तो ये नहीं होना चाहिए. यहाँ से क्लियर है. दैट मीन्स फॉर दिस फंक्शन आई कैन एक्चुअली एग्जामिन माई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड देन आई कैन मूव अहेड. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. सो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस पे बेसिकली हम लोग इसकी जो है वो बात करते हैं. अब देखो बेटा, नॉर्मली सिंस आई नो दैट कि ऐसे जो मेरा क्वेश्चन है मुझे पता है कि ऑब्वियसली ये सब फंक्शन में डिफाइन होगा, सिर्फ और सिर्फ इन जो मेरे को वैल्यूज़ गिवन है उस पर डिफाइन नहीं होगा. करेक्ट है? इतनी बात तो आप भी समझते हैं बहुत अच्छे से. सो नाउ हाउ टू एक्चुअली टेल कि हम लोग लिखेंगे कैसे इस चीज़ को. दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ. सो इफ़ आई जस्ट सी दिस क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, आई नो कि मेरा इक्वल्स टू 5 तो नहीं होने वाला है. So now I will just start with the main point, that is left hand limit and right hand limit. So देखो बात तो मेरी वही पढ़ने वाली है कि x tends to c वाली, because obviously अगर मैं 5 माइनस या 5 प्लस लेती हूँ so it's not going to work in my condition. So I would just take c where c belongs to real number r. Let c belongs to रियल नंबर r -5, बिकॉज हमें 5 नहीं लेना है. 5 लेते ही मुझे पता है मेरा आंसर जो है वो नॉट पॉसिबल होगा ही होगा. सो आई विल जस्ट नॉट टेक द वैल्यू 5. उसके अलावा मैं सारी अपनी वैल्यू जो है वो कंसीडर करने वाली हूँ. ठीक है? सो नाउ जस्ट सी वेरी केयरफुली ओवर हेयर. x टेंड्स टू c f(x) विच वुड बी 1/c - 5, एंड सिमिलरली f of c कितना होगा? दैट इज ऑल्सो 1/c - 5. सिंस दिस बोथ आर इक्वल, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x equals to c. देयरफॉर the function is continuous at x equals to c. That means x belongs to your r -5. Okay, now the next question की भी सेम अप्रोच है बेटा. नथिंग इज डिफरेंट ओवर हेयर. देखो मैं यहाँ पे अगर -5 पुट करूँगी तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर आप एक चीज़ यहाँ पे एग्जामिन करोगे, इफ़ आई जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई माई फंक्शन, दैट वुड बी x² - 25, दैट इज x² - 5² अपॉन x + 5. अब एक चीज़ यहाँ पे एग्जामिन करो, a² - b², सो a - b a + b. दिस इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू रिसीव. कैंसिल कैंसिल, क्या बचा मेरे पास? fx. मेरा fx जो था वो था x - 5. सो मुझे पता है कि ऑब्वियसली जब यहाँ पे -5 आएगा तब ये कंटिन्यूस नहीं है, एक्सेप्ट ऑल दैट वैल्यू के लिए जो मेरा फंक्शन है वो क्या होगा? कंटिन्यूस होगा ही होगा. सो नाउ if you want you can prove it by the concept of c also. If you want you can directly show the working like this also. So let x be equals to -5, sorry, x be equals to r minus -5. Okay,
सो बस लेट्स सी इक्वल्स टू दिस एंड मुझे कुछ नहीं करना, मुझे दिखाना है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, दैट वुड बी योर, इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा मेरे पास c -5 और इसका भी क्या होगा, इसका भी होगा मेरे पास c -5. सिंस दे बोथ आर इक्वल सो आई विल जस्ट से दैट माई फंक्शन इज गोइंग टू बी कंटिन्यूस एट ऑल द वैल्यूज ऑफ r -5. That means I will just write one statement. Therefore, my function is continuous at x belongs to r -5. Okay, ये मेरा आंसर हो जाएगा. Now next part, now this is the most important part that we have, that is of the modulus function. ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है to understand about your modulus function. So बेटा यहाँ पे आप एक चीज़ अपना अच्छे से यहाँ पे एग्जामिन करना कि मॉडुलस फंक्शन का जो मेरा ग्राफ होता है वो भी हमेशा एक मेरा वी टाइप स्ट्रक्चर में बनता है. एंड नाउ इफ आई जस्ट वांट टू डिफाइन दिस, आई कैन जस्ट रीडिफाइन दिस एज x -5 फॉर माई x -5 greater than equals to 0 and -x + 5 for my x -5 less than 0. करेक्ट, ये मेरे पास कंडीशन है. इफ़ आई वॉन्ट टू जस्ट रीसॉल्व दिस, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं किया था, यहाँ पे मैं ना बस मैंने माइनस लगाया बाहर. जब मैंने यहाँ बाहर माइनस लगाया, इट वुड बी -x + 5, जो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा. क्लियर है यहाँ तक पार्ट मेरा? सो नाउ लेट्स मूव अहेड. अब देखो मुझे क्या है, मुझे इन सब वैल्यूज़ पे जज करना है अपना कंडीशंस. यहाँ क्या बनेगी मेरे पास, यहाँ मेरे पास दो कंडीशन है, x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड x इक्वल्स टू 5. यहाँ पे क्या कंडीशन है, व्हेन माई x इज़ लेस देन 5. सो देखो केस 1, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 5, जब मेरा x ग्रेटर है 5 से, तो मुझे क्या पता है, इट्स अ लीनियर ग्राफ. करेक्ट है, ये क्या है, x -5 क्या है, इट्स अ लीनियर ग्राफ. इट इज़ अ लीनियर फंक्शन, सो देयरफॉर ये क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा ही होगा. देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूस एट x greater than 5. Similarly for case 2, if I want, I will just write when x is less than 5. So therefore it is a linear function, therefore it is continuous at x less than 5. But case 3, at x equals to 5, we need to examine for 5 minus 5 plus, that is left hand limit x tends to 5 minus fx. अब 5 माइनस में क्या होगा बेटा, 5 माइनस में ये वाला फंक्शन होगा विच वुड बी लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एक्स प्लस 5. बस यहाँ पे -x + 5 पुट कर देते हैं. सो क्या हो जाएगा, माइनस, देखो बेटा यहाँ पे ना जब भी आपके पास माइनस में आ जाए, इट ऑलवेज बेटर टू टेक अ नेबरहुड. सो इट वुड बी बिकमिंग योर -5 -h plus 5. Change the sign and just write limit h tends to 0. Limit h tends to 0. So -5 plus h plus 5. ये और ये कैंसिल. यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, आंसर वुड बी 0. जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया. Similarly, I am also going for plus sign. I am just going to take a rub all. Sorry, I am just going to rub all this. Take a screenshot. मैं इसको ही रब करती हूँ ताकि एटलीस्ट आई कैन एक्सप्लेन यू दैट हाउ माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट इक्वल, बोथ द कंडीशंस आर देयर टिल नाउ. सो लेट्स टेक योर केस 2 का राइट हैंड साइड, केस 3 का राइट हैंड साइड, दैट वुड बी लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस में ये फंक्शन होगा. सो x -5, दैट वुड बी लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 plus h -5. सो कैंसिल h मेरा 0 है. सो 0 and 0. सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. सो देयरफॉर जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है फॉर ऑल द वैल्यूज, दैट इज माई फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r. सिंपल लॉजिक था, नथिंग वॉज डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स मूव एंड लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अहेड. दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.
prove that the function fx equals to x की पावर n is continuous at x equals to n where यहाँ पे पॉइंट की बात होगी, तो पॉइंट की बात होती है हम वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर देंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल्स टू f ऑफ c। तो यहाँ देखो अच्छे से, जैसे मैं लगाती हूँ लिमिट x टेंड्स टू c fx, इट वुड बी बेसिकली c की पावर n and similarly f of c कितना होगा, c की पावर n, since they both are equal therefore the function is continuous। सिंपल था, the function is continuous at x equals to n। done। now the next question, question number 5। यहाँ से अब थोड़ी जो मेरी अप्रोच है वो हमें सीखनी है। is the function f is defined fx equals to x if x is less than equals to 1, 5 is x is greater than 1। continuous are these all values। अब let's see at x equals to 0 मेरे पास क्या सिचुएशन होगी। at x equals to 0 अगर मैं देखती हूँ अच्छे से, तो 0 जो है वो यहाँ पे लाई करेगा, मेरा fx कितना है वहाँ पर, मेरा fx जो है वो x के इक्वल है ना। दैट मीन्स अ लीनियर ग्राफ, अ लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन का डोमेन क्या होता है, r होता है। सो देयरफॉर at x equals 0 it is continuous। So therefore continuous at x equals to 0। Similarly if you just check at x equals to 2 भी क्या होगा, 2 पर ये वाली वैल्यू लेगा, that is 5 लेगा, और 5 क्या है, 5 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, इज़ अ कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट का ग्राफ तो बेटा ऑब्वियसली वो सारी वैल्यूज़ मेरी एग्जिस्ट कर ही सकता है। तो सिंस इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन आई वुड जस्ट से इट इज़ कंटिन्यूस एट x equals to 2। एंड नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज एट x equals to 1। 1 पे मेरा जो था ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस जो गिवन था, तो इस पे हम लोग हमेशा प्रॉपर चेक करेंगे। सो एट x equals to 1 आई एम गोइंग टू हैव माई लेफ्ट हैंड लिमिट and my right hand limit। So for left hand limit it would be limit x tends to 1 minus fx which would be limit, अब देखो 1 माइनस पे क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी। सो अगेन वो h वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। ओके, सो h इज 0, सो बेसिकली द आंसर इज 1। राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस fx, और 1 प्लस में क्या है, 5 है, देयर इज नो वेरिएबल, सो 5 इज द आंसर। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, therefore the function is continuous at 0 and 2 only, it is discontinuous at 1। the function is continuous at x equals to 0 and x equals to 2 and discontinuous at x equals to 1। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ से अब एक अच्छी अप्रोच शुरू हो रही है विच आई एम गोइंग टू कैटर इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आई नो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी। प्लस आई नो मैंने 1 to 10 क्वेश्चन लिखा था, आई विल चेंज इट टू 5 क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट वांट टू ओवर बर्डन यू। पहले इतना ही अच्छे से रिवाइज करो, इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द more parts। okay, so thank you so much class for this video। question number 6 onward I am going to make one more reel। thank you so much, bye bye, take care।